Yes, good evening, all of you. Let us continue the chapter ray optics, which we already start yesterday. तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने कल देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो अलग अलग फॉर्मूले हैं वो हमने देखे थे। तो अभी हम आज के लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखने वाले हैं, दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। यू कैन सी okay. See here, the principle of reversibility of light tells us simply that if suppose the ray of light suffers from large number of reflections and refractions somewhere, suppose एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरफ यहाँ पे सपोज एक सोर्स है और यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलता है और सपोज एक मिरर उसके सामने है और इस मिरर में से रिफ्लेक्ट होके वो सपोज इस तरफ जाता है। यहाँ पे फिर से एक मिरर है सपोज, और उससे मिरर के से रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे सपोज एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है, और ग्लास के स्लैब में से वो इंटर करके सपोज अभी ऑब्वियसली इट विल जस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड विल जस्ट रीच एट दिस पॉइंट हियर। एंड सपोज यहाँ पे और एक मिरर सपोज रखा हुआ है, इस मिरर में से इंसिडेंट होके या रिफ्लेक्ट होके वापस वो सपोज इस तरफ ट्रेवल करता है और यहाँ पे सपोज एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से निकलने वाला रे अगर इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्शंस सफर करके अगर वो इधर तक पहुंचता है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज इफ सपोज दिस यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्वर और सोर्स इन दोनों के अगर पोजीशंस अगर इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज मतलब समझो यहाँ पे सोर्स जो है वो यहाँ पे रख दिया, तब ये जो सोर्स है यहाँ पे डाल दिया, दिस इज द सोर्स नाउ, and suppose the observer is at this point here which is going to observe, then the ray of light will just travel the same path in a reverse direction and reach at this point where it was started with. This principle is actually called as the principle of reversibility. In short, what we can say, uh, after suffering from large number of reflections and refractions, if suppose the direction of ray of light is reversed, okay, if the direction of ray of light is reversed, then the ray of light will travel its or ray of light will retrace its original path in the reverse direction. This simple fact is actually called as the principle of reversibility of light, and using this principle we can just prove many important things which are difficult to prove otherwise. So उसका सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे अभी, that is you can prove that the refractive index of a medium 2 with respect to medium 1 is always the reciprocal of the refractive index of medium 1 with respect to the medium 2. Okay, for example, if we have two media and suppose that ray of light is incident at this point making an angle I here, and it gets refracted along this line making an angle R suppose, तो अब यहाँ पे ये जो है सोर्स है और यहाँ से रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है और इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम P टू Q एंड Q टू R, नो डाउट। बट सपोज इफ यू जस्ट रिवर्स द रे ऑफ पाथ डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट हियर एट पॉइंट R हियर, तो R पॉइंट पे अगर हमने एक ऐसा मिरर रख दिया जो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि द रे ऑफ लाइट विल जस्ट रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ in the reverse direction. Just जैसे वो इंसिडेंट होगा तो it will get just reflected back and it will just travel in the backward direction, and when it will travel in the backward direction this R will become I, we can call it as I dash. Okay, and at the same time this angle I will actually become angle of refraction, we can call it as R dash, and the ray of light will just reversed and travel in the backward direction and reach at the same point P
where it was started with. So using this principle, we can apply Snell's law two times. Okay, one for the incident ray traveling from P to Q and Q to R, and the second time again we can apply the Snell's law when the ray travels from R to Q and then Q to P back. Okay, so according to the Snell's law, we can say, first of all, if you just apply the Snell's law on this, suppose this is the medium 1 and this is the medium 2. okay, तो 1 और 2 ये दो अलग अलग मीडियम है, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज ऑलवेज रिटर्न लाइक दिस. सो उसको हम लिखेंगे इस तरह से, n, और n के पहले 1 लिखा जाता है और उसके बाद 2 लिखा जाता है, क्योंकि the ray of light is traveling from the medium 1 to the medium 2. That's why we can do this like this, and this will actually be equal to, अब देखो, refractive index of medium 2 with respect to 1, how much it is? It's going to be sin I upon sin R. Okay, so it will be sin I upon sin R. Okay, give this equation number 1. And now if we just focus on the ray of light traveling from R to Q and Q to P back, so in this case the ray is traveling from medium 2 to medium 1, and that's why we can talk about the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. समझा कि नहीं से? So refractive index of medium 1 with respect to 2 will actually be equal to, तो इसमें जब देखेंगे तो 2 मीडियम में ऑलरेडी वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसके अंदर जो ये एंगल है R, वो एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा. जब रे रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा. सो और वो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन R. करेक्ट है? एंड in fact actually we can say that the sin I dash, but I dash we know that it is going to be R only, and here in the denominator it will be sin I. okay, so अभी ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देके रख देंगे. ठीक है, अभी इसमें देखो ये दो इक्वेशंस को अगर देखो ठीक से, तो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशंस 1 and 2, so if you just take the product of these two equations, then we can get this 1 and 2 into 2 and 1 is going to be equal to sin I upon sin R into, so this is here sin R upon sin I. correct है? So that we can just get this sin I cancelled, sin R cancelled, and what we are left with is simply 1 and 2 into 2 and 1 is equal to 1, and hence we can just get that 2 and 1 is equal to 1 upon 1 and 2, and this is what we want to prove here. So in this way we get that the refractive index of medium 1 with respect to 2 is actually going to be refractive index reciprocal of refractive index of medium 2 with respect to medium 1. okay, yes, see here एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. अगर आपको पूछा जाए कि मान लो कि एक 3 मीडिया सेपरेट हो रहे हैं. सपोज यहाँ पे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम सपोज 2 है, ये मीडियम 3 है, और ये सपोज 1 है. ठीक है, तो और सपोज कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस मीडियम पे जब इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो आई इतना एंगल बनाता है सपोज, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होता है और इस मीडियम 2 मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है, फिर यहाँ से भी रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे मिलता है, और इसके बाद वापस इमर्ज होके सपोज ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल बन जाता है. तो देखो 3 बार वो रिफ्रैक्शन सफर कर रहा है. ठीक है, इट सफर्स फ्रॉम रिफ्रैक्शन 3 टाइम्स, एंड नाउ विल सी if we can call the refractive index of medium 2 with respect to 1 as 1 mu 2, or we can say 1 n 2. okay, तो 1 n 2 होगा. yes, then the second is the refractive index of medium 3 with respect to 2 will actually be denoted by 2 n 3. correct है? And back the refractive index of medium 1 with respect to 3 can actually be denoted by 1
सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3। विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है वो हमेशा पीछे लिखा जाता है, और विथ रिस्पेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो हम हमेशा आगे लिखते हैं, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 1 and 2, 2 and 3 and 3 and 1? चेक। यस, यू कैन अनम्यूट योर माइक, बिकॉज ये टाइप करना बहुत मुश्किल जाएगा आपको। Yes, what should be the relationship between 1 and 2, 2 and 3, and 3 and 1? ओके, देखो एक सिंपल सी बात हम कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज कंसिडर्ड एज सपोज v1, ओके। द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज कंसिडर्ड एज v2, and suppose the speed of light in the third medium is considered as v3, and here the speed of light in the first medium is again v1, you can say, okay। तो अभी इस केस में हम देख सकते हैं कि सबसे पहली बात, अगर n 1 and 2 अगर निकालना है, 1 and 2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? 1 and 2 will actually be equal to v1 upon v2, ये तो समझ सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा 2 and 3 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? 2 and 3 will actually be equal to, देखो v2 upon v3, check, simply we can get it as v2 upon v3, no doubt, okay। but now if we just multiply these together, what we get is, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यस, 1 and 2 into 2 and 3 will actually be equal to, see here, v1 upon v2 into v2 upon v3, right? And hence v2 will get cancelled, and we'll be left with 1 and 2 into 2 and 3 is going to be v1 upon v3. Yes, but what is this v1 upon v3? If you see carefully, then v1 upon v3 can be written as 1 and 3, okay, in this way. So we can just get that 1 and 2 into 2 and 1, sorry, 2 and 3 is going to be 1 and 3, that's it। and अभी लेकिन यहाँ पे क्या है, n 3 n 1 है ना, 3 n 1 है, तो इसलिए उसका जो रिलेशनशिप है तो वो ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1 and 3 को 1 upon 3 and 1 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको अगर 1 upon 3 and 1 लिख देंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, we can say this will be 1 and 2 into 2 and 3 is going to be equal to 1 upon ये तो 3 and 1, okay। so if we just take this 3 and 1 in this side, ये साइड में अगर लेके आएंगे उसको तो बनेगा 1 and 3, 1 and 2 into 2 and 3 into 3 and 1 becomes equal to 1। this is actually the relationship between 1 and 2, 2 and 3 and 3 and 1, check, ठीक है ना, समझा ठीक से? और इवन वी कैन जस्ट टेक दिस 3 and 1 as 1 upon 1 and 3 and just transfer to that side and get this result automatically। तो ये कहना और ये कहना बिल्कुल एक बराबर ही है। तो अभी इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव, हाउ टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, and if you know the refractive index is actually equal to the ratio of the speed of light in the respective media, then we can just prove large number of questions or large number of formulas like this। तो इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मूले हम प्रूव कर सकते हैं आराम से, नो डाउट। यस, ओके, सो दिस इज द principle of reversibility of light। Okay, now we'll see the next concept in this chapter, that is about the critical angle।
ओके, सी हियर क्रिटिकल एंगल। अगर सपोज एक रे ऑफ लाइट है और वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये सपोज एक डेंसर मीडियम है। यस, okay, this is the denser medium, and suppose the ray of light just tries to travel from this denser medium into the rarer medium. So in case when the ray of light travels from denser medium to rarer medium, we know that its angle of incidence is always greater than, sorry, is always smaller than the angle of refraction, because the ray of light always bends away from the normal. करेक्ट है? अगर हम यहाँ पे एक सोर्स कंसिडर करते हैं, सपोज यहाँ पे एक सोर्स है, तो इसमें से जो अलग अलग रेज निकलेंगे, तो सबसे पहला जो रे निकलेगा जो कि बिल्कुल सीधा अपवर्ड जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रेवल करेगा, तो वो तो अनडेविएटेड बिल्कुल ऊपर ही निकल जाएगा, नो डाउट। बट द रे विच विल जस्ट बेंड स्लाइटली, सपोज ये एक रे जो है जो ऐसे बेंड होगा, तो यहाँ पे जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाएगा सपोज। तो इसमें देख सकते हो कि जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाने की वजह से वो क्या करेगा, इट विल जस्ट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। सो इट हैज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दिस वे, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस मीडियम का 1 से ज्यादा रहने वाला है, जिसके कारण ये जैसे ही वो बाहर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अगर हमने और एक रे इधर से निकाला, यहां से सपोज थोड़ा और ज्यादा एंगल करने वाला, देखो तो यहाँ पे जो रे आएगा वो जरूर ज्यादा बेंड होगा, देखो ठीक से, इट विल जस्ट बेंड मोर फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आई डैश जो है इसको हम I1 बोल सकते हैं, इसको R1, इसको सपोज I2 बोल देंगे, इसको सपोज R2 बोल सकते हैं। ओके, अभी सोचो अगर हम इस रे को और थोड़ा बेंड करेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 बन जाएगा, करेक्ट है ना? सो व्हेन दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90, एट दैट टाइम द सिचुएशन विल बी लाइक दिस। सपोज ये जो है ये रे ऑफ लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रहा है और इसके ऊपर इस ऐसे एंगल पे इंसिडेंट हो गया जिसका रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 बन गया, देखो ठीक से। सो दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 फॉर दिस रे हियर, एंड नाउ वी कैन सी आफ्टर दिस, इसको हम सपोज बोल देते हैं I3, और उसका करेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना मिल रहा है हमको, 90 मिल रहा है। ठीक है, अभी इसको आगे जाके अगर हम समझते हैं, तो इफ वी जस्ट टेक द नेक्स्ट रे which will just slightly bend and just incident on this surface at an angle which is greater than this I3, तो इस I3 से ज्यादा एंगल पे जब इंसिडेंट होगा ये रे, तो देखो क्या होगा, it will not be able to refract but it will just be get reflected back in the same medium here like this। तो ये नीचे की तरफ मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देखो ठीक से। इवन इसके आगे के सारे जो रेज है वो रिफ्लेक्ट ही होने वाले हैं, क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ पे और एक रे अगर ड्रॉ किया यहां से, जो कि इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा सपोज, ठीक है, यस। तो अभी इस रे का जो क्या होगा, देखो ठीक से, नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल उसका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इसको हम बोलते हैं I4 सपोज, और इसको हम बोल देंगे I5, चले ना? सो इन दिस केस इट विल जस्ट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, so all the rays after this point will just get reflected in the same medium, and hence
दिस विल बी कॉल्ड एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली। देखो ठीक से, तो इसमें हमको दो बातें समझ में आती है। एक तो वन इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, yes, we have to understand two concepts here. One is the concept of critical angle and the second is the concept of total internal reflection. See here, what is the critical angle and what is total internal reflection, we'll understand. See, first of all, we can say critical angle. What is the critical angle? This I3 here is actually called as critical angle. मतलब जिसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जिसके पहले रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। इस क्रिटिकल एंगल से पहले क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट क्रिटिकल एंगल के बाद क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन चालू हो गया। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एंगल I3 को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। इट इज अ स्पेशल एंगल, ठीक है ना, whenever the ray of light travels from denser medium to rarer medium, in that case it happens that for a particular angle of incidence in the denser medium, the angle of refraction becomes 90 degree, and that is actually called as the critical angle. It's very simple, we can understand. And what is total internal reflection? See, again it is related with this critical angle phenomena only. What is total internal reflection? Is the whenever the ray of light traveling from denser medium to rarer medium incidents on the surface of denser medium at an angle which is greater than critical angle, then it suffers from internal reflection, or it gets reflected back in the same medium, and this phenomena is called as total internal reflection. It's very simple. I will repeat again both the definitions. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में, और उसके बाद फिर डेफिनेशन करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में. So what is the critical angle? Whenever the ray of light travels from denser medium to rarer medium, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो ठीक से. Whenever you state the definition of critical angle, you have to mention that the ray of light traveling from denser medium to rarer medium. Not always, हमेशा नहीं होता है. तो इसलिए ये हमको समझना है कि whenever the ray of light is traveling from denser medium to rarer medium and incidents at an angle such that, okay, incidents at an angle on the surface of denser medium for which the angle of refraction is going to be 90 degree, then it is called as the critical angle. Okay, I'll repeat again. Whenever when the ray of light is traveling from, or ray of light traveling from denser medium to rarer medium, the angle of incidence in the surface of denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called as the critical angle. Or we can also say that the angle of incidence in the surface of in the denser medium for which the refracted ray just passes tangentially along the surface, or just refracted ray just passes grazing the surface, this is called as the critical angle. Okay. And what is total internal reflection? We will say when the ray of light traveling from denser medium to rarer medium incidents on the surface of denser medium at an angle which is greater than critical angle, then it gets reflected back in the same medium, and this phenomena is actually called as total internal reflection. It's very simple. And now in order to find out the expression for critical angle, तो अभी हम क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन कैसे ढूंढ के निकालेंगे? तो उसके लिए देखो एक सिंपल सा डेरिवेशन हमको करना होगा, जिसमें सपोज ये एक सरफेस है which separates two media, and this is the normal to that surface, and suppose that denser medium जो है वो यहाँ पे अंदर है, ठीक है, नीचे है. ओके, दिस इज द डेंसर मीडियम. ओके, एंड सपोज द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग. अभी ये वाला जो सिचुएशन है,
ये दिख रहा है, ये वाला सिचुएशन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए I3 हमने लिखा है। तो I3 एंगल पे इंसिडेंट होने से क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो जस्ट पासेस अलोंग द सरफेस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। सो दैट सिचुएशन हैज बीन कंसिडर्ड हियर डायरेक्टली। बाकी सब ड्रॉ करने की हमको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको क्रिटिकल एंगल का ही एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट ये I3 वाला जो रे है वो ड्रॉ करेंगे। तो इट विल इंसिडेंट on the surface in this way and this angle will actually be I3 नहीं, उसको हम IC बोलेंगे, चलेगा ना, IC। IC means critical angle and for this angle the refracted ray will actually be, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है यहाँ पे वो इस तरह से सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, ये देखो ऐसे। Okay, so this is the refracted ray we can see and it will make an angle of 90 degree with the surface. Okay, तो ये this is suppose the source and suppose it incidents on the critical angle and the refracted ray passes grazing the surface and makes an angle 90 degree with it. So this is the situation of critical angle. Okay, now we'll see, we'll apply the Snell's law on this pair. Suppose this is the medium, denser medium, उसको हम बोलेंगे D, चलेगा ना, D मतलब denser medium and this is the rarer medium, we can call it as air, मतलब एयर मतलब रेयर मीडियम, ठीक है। तो अभी सोचो कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। देखो, अगर इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन वी हैव टू टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, करेक्ट है। सो वी कैन जस्ट से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो उसमें हमने क्या लिखा, डी एन ए ऐसा लिखा। सो दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम विल बी एक्चुअली इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन 90, करेक्ट है। सो हियर इट विल बी साइन आई सी डिवाइडेड बाय साइन 90, ओके, बट वी नो दैट साइन 90 इज गोइंग टू बी 1, करेक्ट है, साइन 90 डिग्री हमेशा 1 हुआ करता है। तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये बन जाएगा डी एन ए is going to be actually equal to sine IC upon 1, okay, but we know that DNA, देखो DNA is actually equal to 1 upon AND, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, ये तो उल्टा हो गया ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं, वी टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम ऑलवेज, एंड दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट रिप्लेस इट हियर एंड गेट दैट 1 अपॉन AND is going to be equal to sine of IC simply, and hence we can just say that sine of IC, इसको ही उल्टा करके लिख सकते हैं ऐसा कि sine of IC is equal to 1 upon AND, and hence we can just say that this IC is going to be equal to sine inverse of 1 upon AND in this way, okay. So in short what we can say is critical angle is equal to the sine inverse of reciprocal of refractive index of denser medium with respect to rarer medium. Always remember, we have to talk about the refractive index of denser medium with respect to the rarer medium.
ओके ओके ओके, यस, सो चलो ठीक है. सो बेसिकली दिस इज द expression for critical angle. Remember, we can just try to find out the critical angles of some pairs. Okay, अगर मान लो कि तुमको क्रिटिकल एंगल निकालना है ग्लास का, ये फॉर्मूला देखो, याद रखो ठीक से. एंड दिस इज एक्चुअली द डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay, now we'll just try to find out the critical angle of some substances like see glass. जैसे ग्लास के लिए हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज एक्चुअली 1.5. करेक्ट है, 1.5, और वी कैन से 3/2, नो डाउट. बट देन नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस. सो उसके लिए हमको ये करना होगा कि ये फॉर्मूला यूज करना होगा. साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1/a/μg, और म्यू कहो इसको या एन कहो, एक ही बात है. तुम्हारा टेक्स्ट बुक में एन बोला हुआ है इसलिए मुझे एन बोलना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली म्यू ठीक रहता है. चलो ठीक है, तो साइन ऑफ आई सी इज एक्चुअली गोइंग टू बी 1/a/μ/ang. अभी ए एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज 3/2, करेक्ट है. सो 3/2, इस 3/2 को अगर उल्टा करेंगे तो एक्चुअली वो बनेगा साइन ऑफ आई सी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/3. एंड 2/3 को अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे ना तो वो एक्चुअली बनेगा 0.6667, करेक्ट है. एंड नाउ इफ वी जस्ट सी द साइन इनवर्स ऑफ दिस, सो IC will be equal to what? IC will actually be equal to sin inverse of 0.6667. okay, so IC can be found out to be simply equal to, तो लॉग टेबल जो तुम्हारे पास है, तो लॉग टेबल के अंदर एक ऐसा करो कि ये जो 0.6667 ये नंबर जो है वो टेबल में ढूंढो, नेचुरल साइंस के टेबल में. तो यू कैन फाइंड आउट इट दैट 42 डिग्री लाइक दिस. तो इस तरह से ये तुमको 42 डिग्री के आसपास मिल जाएगा, ठीक है. इट्स एक्चुअली सम मिनट्स इज आल्सो देयर, बट चलो इतना एक्यूरेट हम नहीं निकाल रहे, वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट अप्रोक्सीमेटली. सो एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस एज इट इज दैट द ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, जिसके कारण यहाँ पे हमको क्रिटिकल एंगल जो है ग्लास का वो मिलता है 42 डिग्री. रिमेंबर. अच्छा, कभी तुमको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो कि अगर तुमको क्रिटिकल एंगल निकालना है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास डायमंड इंटरफेस. ओके, एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. देखो क्या करना है हमको. वी वांट टू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल between glass and diamond interface, and suppose that it is given that refractive index of glass is given to be 3/2, and suppose the refractive index of diamond is actually given to be 12/5. okay, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है. सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास डायमंड इंटरफेस. और सपोज दूसरी चीज हमको ये भी पूछा है, सपोज फाइंड द क्रिटिकल एंगल between water glass interface. And suppose refractive index of glass is given to be 3/2 only, but refractive index of water is given to be 4/3. okay, so how will you find it out? So see, सबसे पहले हमको इसमें ये समझना है कि डेंसर मीडियम कौन सा है और रेयर मीडियम कौन सा है. तो यहाँ पे अगर देखेंगे ठीक से, तो ग्लास और डायमंड, इन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो 3/2 दिख रहा है और डायमंड का 12/5 है, जो कि अगर हमने वर्कआउट किया डेसिमल में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कम्स आउट टू बी 2.4 एंड हियर इट कम्स आउट टू बी 1.5.
सो दिस इज लेस, राइट। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ग्लास इज गोइंग टू बी रेयर देन डायमंड, करेक्ट है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डायमंड इंटरफेस? तो साइन आई सी इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे देखो हमने क्या प्रूव किया था, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। चलो वहां पे हमने एयर लिया था, इट्स ओके, बट एयर एयर कैसा भी हो तो वो रेयर मीडियम था ना एक्चुअली, तो इसलिए रेयर मीडियम यहाँ पे आएगा और डेंसर मीडियम इस तरफ आएगा, करेक्ट है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। साइन आई सी के लिए फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम कौन है? डायमंड। तो यहाँ पे डी स्टैंड्स फॉर डायमंड एंड रेयर मीडियम कौन है इधर? ग्लास, करेक्ट। तो ये हमको निकाल के दिखाना है। अभी ये जो है एन जी एन डी, ये कैसे निकालते हैं बताओ? वो कल से क्या था आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कैन बी फाउंड आउट टू बी simply equal to refractive index of diamond upon refractive index of glass। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो होता है, तो इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विल एक्चुअली बी, अब देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 12/5, वो डाल दो यहाँ पे, सो ये बनेगा 12/5 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हिच इज गोइंग टू बी 3/2। ओके, सो then refractive index of diamond with respect to glass comes out to be actually 12/5 multiplied by, इसका रेसिप्रोकल बनेंगे तो 2/3 बन जाएगा, करेक्ट है। एंड इफ वी जस्ट क्रॉस और कैंसल आउट दिस, तो 3 1s are 3 4s are, and hence it gives the refractive index of diamond with respect to glass to be simply equal to 8/5, correct है। so it becomes 8/5 and this is the refractive index of diamond with respect to glass which has to be put here। यहाँ पे हमको इसको रखना है, जिससे हमको मिलता है sin IC to be simply equal to 1 upon this 8/5 and 8/5 को अगर उल्टा करके लेके जाओ तो वो बन जाएगा sin IC is equal to 5/8 and 5/8 का जो वैल्यू है वो अगर हम वर्कआउट करते हैं तो वो हमको मिलता है 0.625 approximately, okay, and then we can be able to find out the IC here। so ये IC जो है वो बनेगा actually sin inverse of 0.625 and then we can just find out this sin inverse of this 0.625 from the tables, log tables। अच्छा, अभी इसमें आप में से किसी कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि साइन इनवर्स कैसे निकालने का, या लॉग कैसे निकालने का, एंटी लॉग कैसे निकालने का, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट्स, रेसिप्रोकल्स वगैरह सब कैसे निकालने का। तो आई विल रिकमेंड यू टू सी द बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम लेक्चर्स ऑन टेकन बाय महेश सर विच आर अवेलेबल ऑलरेडी इन योर ऐप। ठीक है, तो ऐप के अंदर ऑलरेडी महेश सर ने ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स लिए हैं, एक घंटे के ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स ऑलरेडी लिए हैं, जिसके अंदर लॉग टेबल और साइन, कोसाइन, टेंजेंट, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट सब कैसे निकालने का ओके, सुनाई दे रहा है सबको? यस, सो बेसिकली वही सभी लेक्चर्स जो है लिए ऑलरेडी, सो जस्ट ऑब्जर्व दोस लेक्चर्स केयरफुली so that you can just familiar with the log tables and all calculations corresponding to that। चलो ठीक है, सो लेट अस end this lecture at this point। यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कांसेप्ट है वो देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स सब देखेंगे। ओके, चलो।
Thank you all of you. Bye bye.